Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel AI with Noor. So in this video we are going to create this end-to-end project chatbot, basically like exactly ChatGPT. Okay, this will work exactly like ChatGPT. So the name of the system is Gemini Chats, you can also say it, and this is the view where we are communicating with the system, and these are the history records, यानी यहाँ पे हम जो भी chats create कर रहे हैं उनकी history यहाँ पे है, ठीक है. And these are some kind of designing, and here you have couple of functionality like setting functionality. So before exploring this system and all these functionalities and real-time chatting like you do with ChatGPT, creating contents and text, let me show you that we have this generative AI projects playlist. Go to your YouTube channel, sorry, not channel, platform, and there type generative AI projects, AI with Noor. This is the name of my channel, basically artificial intelligence, but now I change it to AI with Noor. So ये playlist access कर लेना और पिछले all videos आप देख सकते हो. Now let's explore this system. हमने ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनानी है. इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, बट ओवरऑल ये एक चैट बॉट है, एग्जैक्टली लाइक चैट जीपीटी या जेमिनी अगर आपने एक्सप्लोर किए हैं. तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग ऑप्शंस हैं, तो हम ये सेटिंग ऑप्शंस भी ऐड करेंगे, इसके डिज़ाइनिंग भी. यू कैन आल्सो चेंज द थीम ऑफ योर सिस्टम to light or to blue or to dark, ठीक है. These are the functionality of this system. You can also zoom in or zoom out like yeah. So ये basically यहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग ऐड की है, ठीक है. सो ये चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह इसको डिज़ाइन एंड फंक्शनल बना सकते हैं. अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है न्यू चैट, बट न्यू चैट से पहले आप देख सकते हो वी हैव सम एग्जिस्टिंग चैट्स, बट फर्स्ट लेट मी चेंज द थीम टू डिफॉल्ट. यहाँ पे देखना, जब मैंने इस चैट के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट के तौर पे बताया व्हाट इज लाइफ, तो यू कैन सी सिस्टम बता रहा है. लेट मी क्रिएट अ न्यू चैट. यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन एंड लेट मी गिव इट अ नेम लाइक मशीन लर्निंग, यानी मैं मशीन लर्निंग के बारे में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. तो देखना, जब आप चैट जीपीटी पे जाते हो तो वहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह टेक्स्ट बार या सर्च बार होता है जहाँ पे आप सर्च करते हो. जैसे कि मैं अपने इस जेमिनी मॉडल को कहता हूँ एक्सप्लेन मशीन लर्निंग, और इट शुड बी मशीन लर्निंग इन डिटेल्स. So the moment I click on this button, you can see we have a loading and the system is creating a response. Basically हमने Gemini API यूज किया है. One thing more, this entire project is free of cost, meaning जब आप large language model से डील करते हो या APIs यूज करते हो like OpenAI APIs या Google APIs, then there are a lot of APIs that are costly, but all these APIs will be free without cost, ठीक है. अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, otherwise it is very fast because I have a low speed internet. So you can see the system generating content related to machine learning. Let me zoom in. You can see machine learning is a subfield of artificial intelligence concerned with the development and application of algorithms and model that can learn from data. Yeah, it's working. You can also see types of machine learning, steps of machine learning. You can see like in machine learning you have data collection, data pre-processing, model selection, model training, evaluation and deployment. उसके बाद इसने यहाँ पे और भी डिटेल्स ऐड किए हैं. सो बेसिकली द मॉडल जनरेटिंग everything related to our prompt. But in prompt engineering, one thing which is very important, जब आप एक टॉपिक स्टार्ट करते हो, नाउ द टॉपिक इज मशीन लर्निंग, तो मॉडल को आपको ये बताना होगा कि आप इस कन्वर्सेशन को एज इट इज रखें. यानी आगे लेट्स से नाउ आई एम अ लिटिल चेंजिंग द प्रॉम्प्ट लाइक कैन यू लिस्ट मेन टाइप्स ऑफ इट, only names, not more details. Now here we are specifically not mentioning machine learning, but instead of machine learning we have passed it. So अब यहाँ पे हम कह रहे हैं, यानी हमारा टॉपिक सेम है,
कॉन्टेक्स्ट सेम है, लेकिन प्रॉम्प्ट चेंज हो गया कि क्या आप इसके टाइप्स को लिस्ट कर सकते हो, सिर्फ उनके नाम. So we have also handled this thing that the model we are using, basically Gemini, it should not forget the previous topic or previous communication. So previous and current, it should focus on previous and current, and on the basis of this communication it should generate content. Let's see. You can see it's main type of machine learning. Let me supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. You can see it's working. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ like let me change the language, can you name them in Urdu or Hindi? As you can see, wow, it's working in Urdu. The types of all this supervised learning, उर्दू में इसको हम कहते हैं, लेट मी जूम इन, निगरानी सीखना, बगैर निगरानी के सीखना, यानी बगैर सुपरवाइज, किसी के सुपरविजन में सीखना, दैट इज नोन एज सुपरवाइज लर्निंग. सो या इट्स वर्किंग. हिंदी में भी आप देख सकते हो, ठीक है. सो दिस इज द कम्युनिकेशन विद द सिस्टम. नाउ लेट मी शो यू, if let's say I want to delete this chat, so you can just click on this delete button and it will give you, are you sure you want to delete the selected chat? Yes, I am going to delete it. Okay, so yeah, in this way it's working. You can also create a new chat, like let me give it a name. I think I already shown you. Okay, so this entire project will be free of cost in the sense that you don't need to buy any API. Okay, it will be free, Google Gemini API. Okay, I'll show you how you can handle that thing. उसके बाद we will design this system with the help of HTML, CSS, JavaScript, and we will create the backend using Python Flask framework, and we will also do all this thing like the setting option that I already shown you. Now let's start the project. So first of all, open your Jupyter notebook and install this library, Google Generative AI. With the help of this library, we will communicate through the API with Gemini. Okay, so just use this. I will share this Jupyter notebook and this entire code in the video description, but आपने ये रन करके इंस्टॉल करना है. उसके बाद आपने क्या करना है, google.generative.ai से Gemini को इंपोर्ट करना है, ठीक है. और अब हमने API को सेट करना है. दिस आर द बेसिक थिंग्स. उसके लिए आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट के अंदर गूगल API की के नाम से अपना API स्टोर करना होगा, ठीक है. ये API आपको नहीं मिलेगा, मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, बट लेट मी शो यू हाउ यू कैन फाइंड आउट योर API. सो लेट्स गो टू Google Developer and just copy the API from there. Okay, in your Chrome browser type macrsuite.google.com. ये आसान तरीका है, हालांकि आप और तरीके से भी जा सकते हो, लेकिन ये वो तरीका है जो आपको एग्जैक्टली उस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा. तो आप जस्ट मुझे फॉलो कर दें. ऐप, उसके बाद API की, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, macrsuite.google.com. it should suggest me. I don't know why it's not suggesting me, but यहाँ पे I think API की कुछ इस तरह जब आप सर्च करोगे तो it will redirect you exactly to that page. So आप देख सकते हो ये है वो पेज. अब यहाँ पे आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. जस्ट क्रिएट API की पे क्लिक कर दें और यहाँ से गॉट डॉट पे क्लिक कर दें, और उसके बाद यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर दें. ये सेलेक्ट करने के बाद अब यानी जनरेटिव लैंग्वेज क्लाइंट को आपने सेलेक्ट करना होगा एंड क्रिएट API की. अब ये आपका API की जनरेट करके देगा. इसको कॉपी कर दो, आपका काम हो गया, ठीक है. जस्ट कॉपी कर दो और आपका काम हो गया. अब आपने आना है वापस और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है. एग्जैक्टली यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है. सो ये मैं आपको दिखाने वाला नहीं क्योंकि प्रीवियस वाला मैं डिलीट कर चुका हूँ. अब उसके बाद ये सेटअप करने के बाद अपने क्या करना है, अब देखना जो जेमिनी मॉडल है LLM, वो इंटरनली बहुत सारे मॉडल यूज़ करते हैं,
क्योंकि ये मल्टी मॉडल है, यानी टेक्सचुअल डेटा के साथ भी काम करता है और ये आपका इमेजेस से रिलेटेड यानी इमेज को जनरेट करना जो मॉडल प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए मुझे ये कस्टम कोड लगाना पड़ा। दिस कोड इज ऑप्शनल। जस्ट मैंने एक्सप्लोर किए कि जो जेन एआई है उसके अंदर एक मेथड है लिस्ट मॉडल्स, यानी सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया लिस्ट अवेलेबल मॉडल्स। उसके बाद इस फंक्शन को जैसे मैं कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, जेन एआई के अंदर जाके लिस्ट मॉडल से जितने भी मॉडल्स है वो उठाएगा और उन मॉडल्स पे मैं एक लूप चला रहा हूं और उस मॉडल के अंदर जाके नेम यानी उस मॉडल का नाम और डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर रहा हूं। तो जेमिनी यानी गूगल जनरेटिव एआई के पास जो जेमिनी का फर्स्ट मॉडल है उसका नाम है चैट बाइसन 001। ये एक लेगेसी टेक्स्ट वाइज मॉडल है, यानी टेक्स्ट कन्वर्सेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद टेक्स्ट बाइसन, ये भी टेक्स्ट वाइज है। उसके बाद एम्बेडिंग है आपके पास। यू कैन आल्सो सी जेमिनी 1.0 प्रो जो कि लेटेस्ट मॉडल है, जो कि हमने इसका प्रीवियस वर्जन यूज किया है। द बेस्ट मॉडल फॉर स्केलिंग अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ टास्क, दिस इज द लेटेस्ट मॉडल। लेकिन हम जो यूज करने वाले हैं वो ये हैं, आपने सिर्फ ये कॉपी करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल सी मार दें, बिकॉज दिस इज द बेस्ट मॉडल फॉर स्केलिंग अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ टास्क्स। इसके अलावा आगे आपके पास प्रोविजन इमेजेस के लिए, यानी इमेजेस को जनरेट करना, हम आने वाली वीडियोज में इन मॉडल्स को भी देखेंगे, बट अभी के लिए हम प्रो को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जेमिनी अच्छा मुझे इस कोड को रन करना होगा एक बार। आई डोंट नीड टू रन दिस कोड बिकॉज आपको आउटपुट दिख रहा है। अब यहाँ पे आप जेन एआई के अंदर जाके जनरेटिव मॉडल के नाम से एक फंक्शन को कॉल कर दें और उसको अपने मॉडल का पाथ दें। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस जेमिनी प्रो मॉडल और हमने इसको मॉडल में स्टोर किया। तो मैं शिफ्ट एंटर दबा के इसको रन करता हूँ। अब मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, व्हाट इज यूनिवर्स। मैं इसको रन करता हूँ। अभी के लिए मैं टेक्स्ट को हटा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद मैंने मॉडल के अंदर जाके जनरेट कंटेंट को अपना प्रॉम्प्ट पास किया, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये अभी के लिए सिंपल है, जब आप ऐप बनाओगे तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने हैं, लेकिन अभी के लिए चीज़ों को सिंपल रखते हैं ताकि पहले आपको समझ आ जाए कि आप किस तरह टेक्स्ट या कंटेंट जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। ठीक है, मेरा नेट स्लो है, अदरवाइज ये बहुत फास्टली आपको चीज़ें जनरेट करके देता है। सो आप देख सकते हो आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह है, यानी जो जेमिनी एआई का रिस्पांस है वो ये है कि रिस्पांस, उसके अंदर फिर जनरेट कंटेंट रिस्पांस, you have different parameters and variables, but we are interested in this part. Okay, we are interested only in this part, so you only need to call text. So अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आके टेक्स्ट वाले पैरामीटर को कॉल करना है ताकि ये हमें टेक्स्ट जनरेट करके दें, एक्सट्रैक्ट करके दें और प्रिंट करके दें। So you can see the universe is everything that exists, including all of space and time. It encompasses everything from smallest subatomic particles to the largest galaxies and superclusters. और यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग सेक्शंस भी होंगे, बट अब हम एक स्ट्रक्चर कोड करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन है, द नेम शुड बी लाइक जनरेशन, and यहाँ पे भी generations like this. So ये comment मैं accordingly change करता हूँ, function to generate content। यहाँ पे भी हमें कहना चाहिए generate content। सो इस फंक्शन के पास एक यूज़र का प्रॉम्प्ट आ रहा है रियल टाइम में, फिर मॉडल जनरेट कंटेंट और वो प्रॉम्प्ट रिस्पांस में स्टोर होकर रिस्पांस से हम टेक्स्ट रिटर्न करके जहाँ पे भी आप फंक्शन को कॉल करोगे वहाँ पे आप गेट करोगे। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ जिसका नाम है जनरेट कंटेंट। सो लेट मी रन इट। अब यहाँ पे रन करने के बाद मैं कहता हूँ व्हाट इज एआई, आप मुझे ये एक्सप्लेन करके दे। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे इसका जो भी कंटेंट जनरेट हुआ होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा।
सो यू कैन सी यहाँ पे व्हाट इज़ एआई के लिए, दिस इज़ द कंटेंट जनरेटेड बाय द मॉडल, ठीक है। एआई रेफर्स टू दिस, यू कैन सी ऑल द डिटेल्स। सो इस वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह इस एपीआई को एक्सप्लोर करके एंड यूज़ करके अपने हिसाब से चीज़ों को जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम एक डिटेल कोड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जहाँ पे आपके पास यूआई क्रिएशन एंड बैकएंड इंटीग्रेशन होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।